उसमें फर्स्ट लेसन था द लास्ट लेसन, इसमें फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल. Okay, right guys. So the third level, it is the story of one simple man living in New York. Okay, New York Central. There is one big railway station which is combined for metros as well as the long journey trains, right? So it is about that station which is talking about the third level. The station is made such that it is on the ground floor and then the first basement. So these are two floors, ground floor and the basement. However, this person says that he has experienced going on the third level, which is like the second basement inside the ground. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? एक स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन. Some of you who might have seen a big metro station or a station where you have metro plus the normal trains combined. It's a big station. So New York Central Station we are talking about, it's a very big situation. It's a very big station. So the third level means this person, the character in this is he's saying that he has gone to the third level of that particular station, and um, third level is like second basement in the station. So no, there is no second basement or there is no third level actually in the station in the practical terms. So people around him do not believe him, and it is very hard for him to convince all of them. So how the situation goes, how the story moves forward, let's continue with that. This is the background. Okay, the presidents of the New York Central and the New York, New Haven, and Hartford Railroads. New York Central is the metro railway station, then New York का railway station और New Haven का railway station, and then Hartford Railroads का railway station. इन तीनों के presidents, इन चारों के presidents के लिए वो बोल रहा है that all these presidents of different railway stations, they will agree or they will swear that there is no third level in the New York Central Railway Station, right? So he says they will swear on a stack of timetables that there are only two. Two means two levels, and two levels means one basement and one ground floor. However, he says he's gone to the third level. But I say there are three. वो कह रहा है, I say that there are three. It's not two level, it's three level as well. So because I have been on the third level of the Grand Central Station. वो फिर से कह रहा है कि I have been there on the Grand Central Station's third level. Okay. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. जस्ट इमेजिन हमारे स्कूल में जैसे चार फ्लोर्स हैं. अगर आपको किसी दिन आपका दोस्त आपके स्कूल में से आके बोलता है कि मैं ना देवस्य के पांचवें माले पे गया था, फिफ्थ फ्लोर पे गया था या सिक्स फ्लोर पे गया था, जो एक्चुअली में है ही नहीं, राइट? सो उसकी कैसी कंडीशन होगी, और उसके फ्रेंड्स जिनको वो बता रहा है वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, राइट? सो दिस इज द सिचुएशन आवर कैरेक्टर वाज इन. वो अपने आप को बोलता है कि भाई, सबको बोलता है कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन कोई बिलीव नहीं करता है. कोई बिलीव नहीं करता है, सब उसको पागल बोलते हैं कि तेरे को वहम हुआ होगा, तेरे को सपना आया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा. सो उस चीज के चलते हुए, आई मीन इट्स बीन लॉन्ग टाइम, वो काफी दिनों से काफी लोगों को बता रहा था, काफी महीने निकल गए, फिर भी नहीं मान रहे थे. फिर इसको लग रहा था कि शायद मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ. सो ही मेट अ साइकेट्रिस्ट एज वेल. वो साइकेट्रिस्ट उसका दोस्त था. उस साइकेट्रिस्ट से मिला और उसको भी बताया था उसने कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड स्टेशन पे, थर्ड लेवल पे गया हूँ. फिर उसने भी बिलीव नहीं किया, क्योंकि साइकेट्रिस्ट को भी पता था कि थर्ड लेवल तो है ही नहीं वहां पे. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream wish fulfillment. कहते नहीं है साइकेट्रिस्ट लोग, या उसका तो दोस्त था, वो भी तो मजाक में भी उड़ा के या उसका एक थ्योरी दे रहा था साइंटिफिक. वो कह रहा था कि इसको तेरे को इल्यूजन हुआ होगा, तेरे सबकॉन्शियस माइंड में तेरे ऐसा लगा होगा, तू सो रहा होगा, सपने में आया होगा, या तेरे दिमाग में ऐसा एस्केप का एटीट्यूड है. एस्केप होता है ना, एस्केप मीन्स किसी चीज से भागना. जैसे हमारे रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी टेंशन होती हैं. आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो तो बहुत ज्यादा नहीं, आपकी तो पढ़ाई की टेंशन होती है, इससे ज्यादा नहीं. बट योर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड द एल्डर्स, यू सी, दे आर सराउंडेड बाय डिफरेंट डिफिकल्टीज इन द लाइफ. बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में. कई सारी चीजें आगे चल रही होती है, पीछे चल रही होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं. तो सैडनेस होता है, या
डिप्रेशन टाइप ऐसी फीलिंग भी होती है, फ्रस्ट्रेशन होते हैं बहुत सारी चीजों के, इनसिक्योरिटी होती है, फियर वगैरह होता है। तो उन सब से भागना, उन सब से छूटना हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है एक प्यार भरी मस्त लाइफ हो, शांति वाली पीसफुल लाइफ हो, राइट। तो वो एस्केप का एटीट्यूड वो है। तो साइकेट्रिस्ट ने उसको बोला इट वाज जस्ट अ वेकिंग ड्रीम, ड्रीम विश फुलफिलमेंट। एंड जब उसने बोला कि ही सेड आई वाज अनहैप्पी, तो साइकेट्रिस्ट ने उसको बोला था कि तू एक्चुअली में खुश नहीं है तेरी लाइफ से, अनहैप्पी है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। जब उसकी वाइफ ने ये बात सुनी कि ये अनहैप्पी है, तो वो तो डर गई कि यार मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे से खुश नहीं है और इसको दूसरी लड़की चाहिए या दूसरी कोई गर्ल मिल गई है। तो वो खुश नहीं थी इस बात से, वो डर गई। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, लड़की का नहीं, एक्चुअली में जो आजकल का वर्ल्ड है बहुत इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, चिंताओं से, इन सब से, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और इन सब से मैं भागना चाहता हूँ, हटना चाहता हूँ, पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। अब ये सिचुएशन कब की है? ये सिचुएशन है अराउंड 1930s की, 1930s या 1925 के आसपास की है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका था, तो वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया था, इनसिक्योरिटी आ गई थी, जॉब छूट गए थे लोगों के, महंगाई बढ़ गई थी। और जैसे अभी आप कोरोना के टाइम पे देख रहे हो, लोगों की कई जनों की जॉब छूटी है या महंगाई बढ़ गई है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लोगों में गरीबी भी है, भुखमरी भी है, बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं। ऐसा ही वॉर के बाद भी होता है, और वर्ल्ड वॉर थी वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में ऑल अराउंड द वर्ल्ड देयर वाज अ रिसेशन, एंड देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटी, फियर वगैरह, ये सब था, बहुत सारी चिंताएं थी। ये उस टाइम की बात कर रहा है कि आज दुनिया में ऐसा है, सबको माहौल ऐसा लग रहा है, तो तू भी उस माहौल में ऐसा ही था कि तेरे को एस्केप करना था इस चीज से, ठीक है। सो नाउ okay, just 1 minute, huh? Give me a minute, guys, here. Alright, so he says कि जो अभी का वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, चिंताओं, इन सबसे भरा हुआ है। तो इसको तू एस्केप करना चाहता है, इसीलिए तेरे दिमाग में ये चल रहा होगा, और इसीलिए तू ये को सपना आया होगा कि भाई ये मैं यहाँ से चला गया और थर्ड लेवल पे चला गया। और वो थर्ड लेवल भी क्यों आया दिमाग में उसके? क्योंकि वो थर्ड लेवल से, वो पुराने जमाने में होता था, थर्ड लेवल सेकंड बेसमेंट में होता था, वो वहां से भागना चाहता था, वहां से ट्रेन लेके कहीं और जाना चाहता था। ऐसा उसको सपना आया था, या ऐसा उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ था। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी। वेल, हु डजंट? कहता है ऐसा तो हर कोई चाहता है, आजकल की लाइफ सबकी चिंताओं भरी है, सबके पास डिप्रेशन है, सब एस्केप करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग तो थर्ड लेवल पे नहीं जाते हैं, और मैं ही गया हूँ। एवरीबडी आई नो wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कह रहा कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं जाता है, मैं गया हूँ। एस्केप तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन मैं गया हूँ सिर्फ थर्ड लेवल पे, बाकी कोई नहीं गया है। ओके, बट दे डोंट wander down into any third level at Grand Central Station. Says, but that is the reason. अब साइकेट्रिस्ट ने उसको अपनी थ्योरी के साथ और कैसे मैच किया? बट दैट इज द रीजन, ही सेड, एंड माय फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, कि यही तो बात है कि बाकी लोगों की भी चिंता होती है, तेरे को भी है, लेकिन उनकी चिंता इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी तेरी है। तेरे दिमाग में ज्यादा टेंशन है, तू ज्यादा अनहैप्पी है, इसलिए तेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, बाकी लोगों के साथ नहीं होता है। उसने ये थ्योरी दी। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। सबने यही कहा, मेरे दोस्तों ने भी कहा, और हर चीज इसी बात पे इशारा कर रही थी। दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा भी किया कि नहीं, यही हुआ होगा, तेरे साथ में गलती हुई है, तेरे को भ्रम हुआ है। My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. लोगों ने तो इतना भी बोला कि तेरे को जो स्टैम्प कलेक्शन की आदत है ना, स्टैम्प कलेक्शन भी क्या होता है, एक हॉबी के रूप में लोग परस्यू करते हैं। तो इसको स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी। और हॉबी कोई सी भी होती है, जैसे मान लो किसी को सिंगिंग की, म्यूजिक की, या किसी भी डांसिंग की, किसी भी चीज की हॉबी हो, आर्टिस्ट हो, उसकी ड्राइंग की, तो वो टाइम पे वो लोग दुनिया से हट जाते हैं। जब अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इस दुनिया के टेंशन से दूर हो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और टेम्पररी रिफ्यूज मिल जाता है उनको रियलिटी से। ये उसने बोला है, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। कह रहा है देख, तू टाइम कलेक्शन भी करता है, वो भी तो टेम्पररी रिफ्यूज है रियलिटी से, और वही तेरे दिमाग में चल रहा होगा, इसलिए तूने एक थर्ड लेवल अपने दिमाग में देख लिया जहां से तू कंप्लीटली रिफ्यूज ले सकता है। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality.
कहता है हो सकता है तुम लोग सही हो, लेकिन ग्रैंडफादर मेरे जो थे वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है, वो तो जब पैदा हुए थे तब तो वर्ल्ड वॉर हुई भी नहीं थी। और जब उनकी लाइफ थी, उनकी लाइफ में तो बहुत सिंपल था सब कुछ। वो क्यों रिफ्यूज करना चाहते होंगे, वो क्यों रियलिटी से भागना चाहते होंगे? बिकॉज उनको भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, ये कह रहा है। अगर आप स्टैम्प कलेक्शन की बात कर रहे हो तो उनको भी था, मेरे दादाजी को, उन्हीं से तो मेरे को मिला ये शौक। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल in his day from all I hear and he started my collection। कहता है कि मैंने जितना भी मेरे दादाजी के बारे में सुना है, उसके टाइम पे चीजें बहुत पीसफुल थी, बहुत अच्छा रहता था, और उसी ने मेरा ये कलेक्शन स्टार्ट किया था। उनसे ही मेरे को आदत पड़ी और मैंने ये इस टाइम कलेक्शन चालू किया था। अब ये कहता है इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। यहाँ पे कुछ चीजें मैं बताऊंगा। यूएस इशू मींस यूएस की जितनी भी स्टैंप इशू हुई हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और फर्स्ट डे कवर्स, फर्स्ट डे कवर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। स्टैंप जो होती है ना, स्टैंप किसी भी देश में या किसी भी राज्य में जो चलती हैं, वो जो स्टैंप होती हैं वो जिस दिन इशू होती हैं उसको फर्स्ट डे बोला जाता है। और जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जिनकी ये आदत होती है स्टैम्प कलेक्शन की या हॉबी होती है, वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन ये इश्यू होता है उसी दिन कुछ चार स्टैम्प्स खरीद लेते हैं, कम से कम चार। कुछ ज्यादा भी खरीदते हैं लेकिन चार खरीद लेते हैं, और चार अलग अलग एनवेलप पे वो चार स्टैम्प लगाते हैं, और चारों एनवेलप अपने ही एड्रेस पे अपने आप को पोस्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है, जिस दिन स्टैंप वो इशू हुआ तो स्टैंप तो मिल गया उनको पोस्ट ऑफिस से, बाद में वो जब पोस्ट करते हैं अपने आप को, तो वो पोस्ट बॉक्स में जाएगा या पोस्ट ऑफिस में जाएगा, तो पोस्ट ऑफिस वाले उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे, जो सिक्का होता है या सील होती है, वो सील लगेगी और सील में डेट आ जाती है, और वो प्रूफ हो जाता है कि ये स्टैंप उस दिन का ही इशू है जिस दिन ये इशू हुआ था। तो फर्स्ट डे कवर कहते हैं उसको, द कवर द एनवेलप, एंड फर्स्ट डे मींस द फर्स्ट डे ऑफ द स्टैम्प इशूइंग। ओके। और वो खाली होता है एनवेलप, वो एनवेलप अपने आप को मेल करके रख देते हैं, अपने कलेक्शन में जमा के रखते हैं, जब लोगों को दिखाते हैं फिर। सो इस टाइम कलेक्शन वालों की ये आदत होती है, ये फर्स्ट डे कवर होता है। अब ये बता रहा है, जब स्टैम्प कलेक्शन की बात निकली तो ये बताता है कि मेरे दादाजी ने कलेक्शन स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसमें बहुत सारे यूएस के जितने भी स्टैम्प इशू हुए हैं आज तक, उन सब के फोर फोर ब्लॉक यानी फोर फर्स्ट डे कवर्स रखे हुए हैं मेरे पास। उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें, यानी कि वो कहने वाला था बहुत सारा उसके बारे में। सी उसका माइंड कैसा चल रहा है, अभी वो हमको स्टोरी बता रहा था थर्ड लेवल की, लेकिन जैसे इस टाइम कलेक्शन की बात आई उस टाइम कलेक्शन पे थोड़ा आगे बढ़ गया। फिर उसने उसी से अपना एक पॉइंट निकाला। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, जो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके बारे में भी फेमस है कि वो भी स्टैम्प कलेक्टर थे अच्छे, स्टैम्प कलेक्शन का शौक था उनको भी। सो वो थोड़ी रिफ्यूज से भागना चाहते थे। वो कह रहा है कि आप लोग मेरे को बोलते हैं स्टैम्प कलेक्शन मेरा एस्केप का एटीट्यूड है, तो ऐसे तो मेरे दादाजी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उनकी लाइफ में, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को क्या प्रॉब्लम थी, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। सो इज गिविंग हिज आर्ग्यूमेंट्स, इसके फ्रेंड्स ने दूसरी आर्ग्यूमेंट दी, इसके एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने दूसरी आर्ग्यूमेंट दी। अल्टीमेटली कोई मान नहीं रहा था इसकी बात, ये सबको बोल बोल के थक गया था, कई दिन निकल गए थे। अब हालत ये थी कि अब ये परेशान होके किसी से बात करना चाहता था, अपनी बात बताना चाहता था, तो इसने ये आर्टिकल लिख दिया और ये आर्टिकल के थ्रू हमको बता रहा है। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो हमको बता रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी कि अभी कुछ महीने निकल गए हैं, ये पुराने समर की बात कर रहा है, पुरानी गर्मियों की बात कर रहा है। उस दिन वो ऑफिस में लेट नाइट तक काम कर रहा था, लेट हो गया था तो वापस घर जा रहा है। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. जनरली वो ऑफिस से घर वापस बस से जाता था, लेकिन उस दिन उसको लेट हो गया था तो उसने क्या करा, ग्रैंड सेंट्रल से सबवे, सबवे मतलब बेसमेंट में चलने वाली जो ट्रेन होती है उसको सबवे, तो ग्रैंड सेंट्रल के सबवे बेसमेंट से जाके उसने मेट्रो पकड़ने की कोशिश की, ताकि मेट्रो से जल्दी पहुंच जाएगा। उसके मतलब जनरली देखा जाता है बस से मेट्रो जो है फास्टर होती है, तो उसने फास्टर जल्दी पहुंचने के लिए मेट्रो ट्रेन पकड़ने का उसने डिसाइड किया, गया और मेट्रो पकड़ने की कोशिश की वहां से। जस्ट वन मिनट, सम पीपल आर जॉइनिंग इन। ओके, आई गेस ऑल ऑफ देम आर एबल टू जॉइन नाउ, राइट? सो he was in a hurry, so that's why he decided to take a train on that day instead of a bus. Understand?
सो काफी बार वो जाता था, ऐसा नहीं है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वो कभी गया नहीं था। जनरली वो एवरी डे बस से जाता था। उस दिन जल्दीबाजी के चक्कर में, जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो मेट्रो से जाना पसंद किया, इसलिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। ये कह रहा है कि अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा मेरे बारे में, क्योंकि मेरे को लोग कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं भागना चाहता हूँ, बट मेरे को ऐसा अजीब कुछ नहीं लगता है, क्योंकि मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ या कोई ऐसा कोई बड़ा तीसमार खा नहीं हूँ। मैं तो एक सिंपल सा ऑर्डिनरी गाय हूँ। मेरा नाम है चार्ली। आई एम 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. अभी उस दिन की पूरी डिटेल बता रहा है जिस दिन ये वहां से मेट्रो पकड़ के आया था। कह रहा है कि उस दिन मैं एक गैबर्डीन सूट पहन के गया था ब्लैक कलर का, एंड स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड भी पहन के रखी थी। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं वहां से जब निकल रहा था, जा रहा था ग्रैंड सेंट्रल पे, तो मैंने वहां पे काफी लोगों को देखा। काफी लोग चल भी रहे थे, नॉर्मल से लोग जैसे एवरीडे दिखते हैं हमको। तो उसमें कोई खास बात नहीं थी उस दिन, कोई खास मैं डिप्रेशन में नहीं था, खास किसी सोच में नहीं था। मेरे को सिर्फ एक ही बात की जल्दी थी कि मेरे को जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। एंड आई wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Luisa, my wife. उसकी वाइफ का नाम है लुइसा। कह रहा है मैं को कोई और बात नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी वाइफ के साथ मिलने के लिए जल्दीबाजी में जल्दी जा रहा था, बस और कुछ नहीं था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अभी 20th सेंचुरी चल रही थी, 1925 के आसपास का सीन है ये। तो 20th सेंचुरी के जो ट्रेन है वो फर्स्ट लेवल पे, यानी कि फर्स्ट लेवल कहाँ पे है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल मींस ग्राउंड फ्लोर। तो वो कह रहा है ग्राउंड फ्लोर जो फर्स्ट लेवल है, मैं उससे नीचे, वेंडरबिल्ट एवेन्यू उस प्लेस का नाम है। इट्स अ बिग रेलवे स्टेशन। अगर आपने दिल्ली कभी सफर किया हो तो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन है राजीव चौक नाम का। बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, बिकॉज वहाँ पे ऑल ओवर दिल्ली की जितनी भी मेट्रो ट्रेन हैं, चाहे वो ब्लू लाइन हो, येलो लाइन हो, रेड लाइन हो, ऐसी अलग अलग लाइन की चलती हैं, सब मिलती है। राजीव चौक इज अ बिग सेंट्रल स्टेशन देयर। वैसे ही न्यूयॉर्क कितना बड़ा सिटी, और उसका न्यूयॉर्क का मेट्रो का रेलवे नेटवर्क कितना बड़ा है, उसकी सारी रेल्स वहां आके मिलती हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन कितना बड़ा होगा। तो उसकी एंट्रीज बहुत सारे हैं, एंट्री पॉइंट्स बहुत सारे हैं, एग्जिट पॉइंट्स बहुत सारे हैं। इस तरीके का बड़ा स्टेशन है। और वो ग्राउंड फ्लोर पे, बाद में फर्स्ट लेवल यानी बेसमेंट में भी बना हुआ है ऐसे करके। तो ग्राउंड फ्लोर पे आया वो, ग्राउंड फ्लोर से नीचे सीढ़ियां लेके नीचे गया, where you take trains like 20th century. Then I walked down another flight to the second level. फर्स्ट लेवल यानी ग्राउंड फ्लोर, सेकंड लेवल यानी कि फर्स्ट बेसमेंट में पहुंचा वो, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम। नीचे नीचे सेकंड लेवल पे उसको पता था कि सब अर्बन ट्रेन यानी मेट्रो ट्रेन चलती है और मेरे को वहीं से पकड़नी है मेट्रो ट्रेन। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। और वहां से एक टनल टाइप रास्ता है, टनल टाइप रास्ते से अंदर गया, और वहां जाके आगे उसको पता था कि इसके दूसरी तरफ मेरे को वहां से ट्रेन मिलेगी। एंड गॉट लॉस्ट। लेकिन मैं उस सबवे में अंदर गया और वहां पे मैं गुम हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता पड़ा उसके बाद मैं किस रास्ते पे गया। That is easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times. कह रहा है मैं गुम हो गया, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल सी बात है। वो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। कह रहा है मैं सैकड़ों बार उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे गया हूँ, लेकिन और मैंने बहुत बार वहां से ट्रेन भी पकड़ी है। लेकिन उस दिन मैं गुम हो गया तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेशन है और जनरली लोग वहां पे इधर उधर गुम हो जाते हैं। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। कि भाई एटलीस्ट मेरी बात कर लो, तो मैं तो कई बार ऐसा होता है कि कई बार नई सीढ़ियां, नए पुल या नए सबवे, नए टनल के अंदर घुस जाता हूँ, नया कॉरिडोर देख लेता हूँ, कुछ भी ऐसा देख लेता हूँ। Once I got into a tunnel about a mile long, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. बोल रहा है मैं एक बार ट्रेन पकड़ के वहां से निकल रहा था जब, तो वहां से एक टनल पार करके मैं दूसरी तरफ निकला, तो पता पड़ा मैं कि रूजवेल्ट होटल की तरफ निकल चुका हूँ। कहने का मीन्स ऐसा है कि सपोज एक इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है जो पूरा का पूरा निकोल एरिया कवर कर देता है सपोज, और निकोल एरिया में अगर आप बापू नगर के वाले एंट्री से आपने एंट्री किया, आपने स्टेशन फर्स्ट लेवल पे गए, फिर वहां से निकल के सेकंड लेवल पे गए, सेकंड लेवल से जब बाहर निकल रहे हो टनल से, तब आपको पता पड़ा कि आपको निकलना था विराटनगर की तरफ, आप लेके निकल गए हो वस्त्राल की तरफ। ऐसा दूसरा रूट पकड़ लिया आपने। तो ऐसा हो सकता है, उसने ऐसा बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, सैकड़ों बार मैं गया हूँ वहां पे, कई बार मैं गुम हो जाता हूँ इधर उधर दूसरी जगह पे चले जाता हूँ।
तो रूजवेल्ट होटल की तरफ निकल गया था, एक बार उसने ये बताया। दूसरी बार बोल रहा है, अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट। वहां पे हर एक स्ट्रीट का नंबर होता है, जैसे गांधीनगर में आपने देखा होगा। तो 46 स्ट्रीट पे मैं 3 ब्लॉक्स अवे, एक बार दूसरी बार बात है जब मैं अपनी ऑफिस बिल्डिंग से जब निकल के उसमें गया था, तो मैं सीधा 46 स्ट्रीट पे निकल गया, जो कि वापस हमारे ऑफिस के पास में ही निकलती है। अब मैं नीचे घूम के इधर उधर घूम के ऐसे करके टनल में बाहर निकला हूँ, देखा तो वापस ऑफिस के 3 ब्लॉक, ऑफिस से 3 ब्लॉक दूरी खड़ा हूँ। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कह रहा है, अब मुझे क्या लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना बहुत बड़ा हो गया है। जैसे मैंने आपको राजीव चौक का एग्जांपल दिया, अगर आपको वो पता है दिल्ली में राजीव चौक स्टेशन, या आपने कभी कोई बड़ा सा रेलवे स्टेशन देखा हो, जैसे वीटी है विक्टोरिया टर्मिनस, या जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं मुंबई में, बहुत बड़ा स्टेशन है। वहां से लोकल भी चलती हैं और नेशनल वाले लेवल की गाड़ियां भी चलती हैं। वही बहुत बड़ा स्टेशन है, वहां भी लोग जनरली इधर उधर गुम हो जाते हैं। बट इट इज ऑल ऑन द ग्राउंड फ्लोर ओनली। अभी अगर उसमें हम फर्स्ट फ्लोर यानी कि सेकंड बेसमेंट बना दें या फर्स्ट बेसमेंट बना दें, ऐसे करके बना दें, तो वो भी काफी बड़ा हो जाएगा। सो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का कितना बड़ा है वो सपोज करो। अब वो कह रहा है, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, एक ट्री की तरह बड़ा हो रहा है। जैसे बनियान ट्री नहीं होता, बरगद का ट्री, वो कैसे बड़ा होता है, एक ट्रंक बड़ा होता है ऊपर, उसके बाद उसकी डालियां ब्रांचेस निकल जाती, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो वैसे ही उसके नए नए कॉरिडोर, नए नए स्टेयरकेसेस, नई नई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बनते जा रहे हैं, जैसे रूट्स के बनते हैं उनके अंदर में। ऐसा वो कहता है। देर इज, ये देखो आपने पिक्चर भी देखी होगी, यहाँ पे पिक्चर दिखा रहा है वो इसकी, एक ट्री बना के दिखाया हुआ है यहाँ पे। इस ट्री में यहाँ पे एंट्री एग्जिट ये डोर बने हुए हैं कि एंट्री का एक डोर है। इसकी ट्री की रूट्स या ब्रांचेस अलग अलग ऐसे बनती जा रही हैं। तो इतना बड़ा रेलवे स्टेशन उसका बनता जा रहा है। इस तरफ ये रेलवे स्टेशन का फोटोग्राफ भी दिखा रहा है। अंडरस्टैंड? देयर इज प्रोबेबली, अब वो इस चीज को बताने के लिए, वो और ज्यादा थ्योरी को साबित करने के लिए कि कैसे मैं सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री के जैसा है, उसको सपोर्ट करता है। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट nobody knows about, feeding its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. तो कह रहा है कि मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोचता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। मुझे तो लगता है ये एक बड़े ट्री की तरह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसकी ब्रांचेस अलग अलग हैं। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ और इसका कैसे हो सकता है। ऐसे भी देखो आप, 1 साल पहले ये इसके अंदर में ये वाला एग्जिट पॉइंट नहीं था, ये वाला एंट्री पॉइंट नहीं था, 2 साल पहले वो वाला एंट्री पॉइंट नहीं था। अब हर साल नए नए एंट्री एग्जिट पॉइंट जुड़ते जा रहे हैं उसके अंदर में। तो ऐसा लगता है कि शायद अभी भी आज के दिन में भी हमारी जमीन के नीचे कोई एक टनल बन रही होगी जो उसके साथ कनेक्ट करती होगी कहीं ना कहीं, और वो कहीं कहीं टाइम्स स्क्वायर पे निकलती होगी, या कोई दूसरी टनल बन रही होगी जो सेंट्रल पार्क में निकलती होगी। ऐसे अलग अलग एरियाज के नाम बता रहा है। कह रहा है कि जमीन के नीचे ही वो मेट्रो स्टेशन को इतने बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ निकलता जाएगा। और ये तरीका भी है कई लोगों का गुम हो जाने का, तो एक तरीके से वो रियलिटी से एस्केप करते हैं। ये उसने माना, ये बात उसने मानी, उसका माइंडसेट पढ़ते हैं कैरेक्टर का। वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है कि वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है बहुत बड़ा है ट्री की तरह, और बहुत सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसके अंदर में। कोई भी लोग उसमें गुम हो जाते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर जाते थे। मैं तो चला भी गया हूँ 2-3 बार, ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। फिर भी मेरे को लगता है कि आज भी इसमें साथ ऐसी टनल वगैरह होंगी जो इधर घूम जाएंगी, उधर गुम हो जाएंगी, ऐसा लगता है मुझे। ये आइडिया मेरे दिमाग में था, बट ये आइडिया उसने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं दिया था। क्योंकि ये चीज वो बताता ग्रैंड सेंट्रल के बारे में कि ये ट्री के जैसा सोचता है और ऐसा उलझा हुआ ट्री है, तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड तो इसको पक्का मान लेता कि ये पागल हो गया है और ये रियलिटी से भागना चाहता है। राइट? तो वो पक्का मान लेता है, इसीलिए इसने उसको बताया ही नहीं था, ये डिस्कस नहीं किया था उसने। अंडरस्टूड क्या चल रहा है यहाँ पे? The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. अब ये उस दिन की सिचुएशन फिर से वापस बता रहा है हमको कि उस दिन क्या हुआ था। मैं ग्राउंड लेवल से नीचे फर्स्ट बेसमेंट में गया, यानी कि फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे गया था। सेकंड लेवल पे मैंने एक टनल पकड़ी, उस टनल के थ्रू मेरे को दूसरी तरफ जाना था जहाँ पे मुझे दूसरी ट्रेन मिलने वाली थी मेरी घर की तरफ जाने वाली।
तो जब टनल के अंदर गया मैं, तो मुझे एक नया ही रास्ता दिखाई दिया वहां पे, स्लाउंटिंग डाउनवर्ड, लेफ्ट में जाता हुआ, डाउनवर्ड नीचे जाता हुआ छोटा सा रास्ता दिखाई दिया उस टनल में। दैट वाज रॉन्ग, मुझे लगा कुछ अजीब है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैं चला गया उस रास्ते पे। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिड नॉट पास अ सोल। कह रहा है बाहर, स्टेशन के बाहर या फर्स्ट लेवल पे मेरे को बहुत सारे लोग मिले थे, लेकिन उस टनल के अंदर में जैसे ही मैं आया तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। और मैं जब अकेला चलता जा रहा था, मुझे थोड़ा तो लगा अजीब है, लेकिन फिर भी मैं चलता गया, मुझे लगा टनल पास होगी तो उसके बाद में मेरे को सही जगह मिल जाएगी। लेकिन मेरे को सिर्फ अपने ही फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, कोई और था ही नहीं वहां पे। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. ऐसा कभी होता है आपके साथ में, आप टनल या कोई सी भी खाली चीज, बड़ी सी हो, बड़ा सा एरिया हो जिसको अंधेरा हो पूरा, और दूसरी तरफ से कहीं से एक रोशनी हल्की सी दिखाई दे या कोई सी हल्की सी आवाज भी आए तो आपको सुनाई देती है। तो ये बड़ी सी टनल थी, टनल के अंदर में ये वॉक कर रहा था, इसको अपने फुटस्टेप की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन बाद में इसको हल्की सी आवाजें ऐसी सुनाई दी कि टनल कहीं पे जाके एंड हो रही है, और उस एंड पे ओपन स्पेस पे कुछ लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातों की आवाजें यहाँ पे आ रही है इस टनल में भी। तो इसको उम्मीद जागी कि ये टनल आगे जाके खत्म हो जाएगी और मैं सही जगह पे निकल जाऊंगा। अंडरस्टैंड? तो पहले उसको फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी अपनी खुद की, थोड़ा रॉन्ग लगा, लेकिन बाद में उसको किसी न किसी इंसानों की बातें सुनाई दी तो उसको लगा कि सही रास्ते में जा रहा है, फिर आगे बढ़ा। द टनल टर्न्ड शार्प लेफ्ट, ये आगे बढ़ रहा है, टनल अपने आप ही शार्प लेफ्ट की तरफ मुड़ी हुई थी थोड़ी, उस रास्ते पे वो अपने आप ही मुड़ गया। I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. और जैसे ही मैंने वो लेफ्ट वाला टर्न लिया थोड़ा सा आगे जाके, और वहां पे मेरे को दिखाई दिया कि सीढ़ियां बनी हुई हैं, और वो सीढ़ियां और नीचे जा रही हैं। मुझे लगा शायद नया बना दिया होगा, क्योंकि ये स्टेशन तो रोज बनता रहता है, नई नई चीजें बनती रहती हैं। तो मैं उस फ्लाइट स्टेयर्स पे, फ्लाइट मीन्स स्टेयर्स के एक साथ ग्रुप होता है, उसको फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स बोलते हैं। तो 10-15 सीढ़ियां थी, वो सीढ़ियां उतर के नीचे की तरफ आया, नीचे जैसे ही आया दिखता है अपने आप को मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ, क्योंकि ये नया ही लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, जो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं है। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से रास्ता भटक गया हूँ और घूम फिर के टनल में वापस ग्राउंड फ्लोर पे चला गया हूँ, और ग्राउंड फ्लोर से वापस नीचे सीढ़ियां उतर के अब मैं बेसमेंट में, यानी कि फर्स्ट बेसमेंट में और सेकंड लेवल पे आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लगा। बट मैंने ध्यान दिया कि नहीं, ये सेकंड लेवल जैसा नहीं है, ये जो रूम है सेकंड लेवल के रूम के हिसाब से छोटा है। सेकंड लेवल का रूम जो अभी भी मैं होके आया हूँ वहां से, वो तो बड़ा है, ये छोटा है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और सेकंड लेवल पे मैंने देखे थे ट्रेन के गेट्स बहुत सारे थे, अलग अलग टनल के रास्ते जा रहे थे दूर, और बहुत सारी विंडोज थी वहां पे, टिकट विंडोज बहुत सारी थी। लेकिन यहाँ पे जिस लेवल पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे टिकट विंडो कम है और ट्रेन के गेट भी कम है और रूम भी छोटा है। And the information booth in the center was wood and old looking. फिर मैंने टिकट विंडो के आसपास इंफॉर्मेशन सेंटर को देखा, वो भी पुराने जमाने का था, लकड़ी का बना हुआ था, पुराना लिख रहा था, जबकि आजकल तो सारे के सारे डिजिटल होते हैं। तो उसको वो भी अजब लगा। And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. तो कह रहा है फिर मैंने अंदर बूथ पे बैठे हुए, टिकट विंडो पे बैठे हुए क्लर्क को देखा। वो बंदा ग्रीन आई शेड पहने हुआ था, चश्मा मीन्स आई शेड मीन्स चश्मा, और ग्रीन आई शेड वो पुराने जमाने में चलते थे, आजकल नहीं चलते, उनका फैशन बंद हो गया है। और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए हैं उसने, जो भी पहले चलते थे आजकल नहीं चलते हैं। उसको लगा ये पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहना हुआ है, और पुरानी ओल्ड लुकिंग बूथ वगैरह क्यों है यहाँ पे, ये सब। द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फिर मैंने लाइट पे ध्यान दिया तो लाइट जो है एकदम फुल एनलाइटेड नहीं थी, मतलब बहुत रोशनी नहीं थी ज्यादा, फ्लिकर कर रही थी हल्की सी और डिम थी, तो फ्लिकर कर रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया, देन आई सॉ व्हाई, मैंने उसका रीजन जानने की कोशिश की। अंदर की तरफ देखा बूथ पे, तो वहां पे अंदर गैस लाइट, यानी कि जैसे लालटेन होती है ना इंडिया में, वैसे ही वहां पे गैस लाइट पुराने जमाने में चलती थी। वो गैस लाइट की जैसे लालटेन की लाइट ऐसे फ्लिकर करती है हिलती हुई मोमबत्ती की तरह, वैसे ही वो भी वहां पे गैस लाइट की वो ओपन फ्लेम थी जो फ्लिकर कर रही थी, और वो डिम थी नॉर्मल लाइट से, राइट। तो ये कोई ऐसे लेवल पे पहुंच गया था जो एक्चुअली पुराने जमाने में थर्ड लेवल हुआ करता था उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, ये वहां पहुंच गया था। कैसे पहुंचा ये नहीं क्लियर हुआ है। ये कह रहा है कि मैंने एक टनल पकड़ी थी जो नॉर्मल टनल थी, मुझे लगा नई बनी है, मैं उसके अंदर चला गया, मुझे लगा मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, और आगे जाके मैं पता पड़ा सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से मैं नीचे उतर गया, यानी कि सेकंड बेसमेंट यानी कि थर्ड लेवल पे पहुंच गया। और वहां पे जितनी भी चीजें ये सब बता रहा है कि ये सब पुराने जमाने की दिख रही थी मुझे, बट ये लेवल नया था।
All of you guys can hear me and you can understand what is going on, right? Story समझ में आ रही है ना guys? Okay, so he snapped open that gold watch. That person who had that gold watch in his vest pocket, उसने वो open किया, and then he frowned. Means he was not happy looking at the time. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and had a big black handlebar mustache. Handlebar mustache क्या होता है? जिसके में बाल थोड़े बाहर की तरफ निकलते हैं, इसको आप पकड़ के मोड़ सकते हो ऐसे, तो वो हैंडलबार मुस्टैच बोलते हैं. बिग ब्लैक. अमेरिका में उस टाइम पे जो फैशन चल रहा था चार्ली के टाइम पे, वो वैसा नहीं था. उससे 20-40 साल पहले की बात कर रहा है, तब वो हैंडल बार मुस्टैच हुआ करती थी. तो ये एक एक चीज डिटेल में हमें बता रहा है कि उस आदमी ने गोल्ड वॉच रखी हुई थी, वो भी पहनने वाली नहीं, रखने वाली, और वो भी वेस्ट पॉकेट में थी. और उसने कौन सा कलर का सूट पहन के रखा था, क्या पहन के रखा था, उसकी मुस्टैच ऐसी थी जो पुराने जमाने की हो, पुराने जमाने के ब्रास स्पुटून थे, सब कुछ ऐसा लग रहा था. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. फिर मैंने हर एक इंसान पे ध्यान दिया, तो जितने भी पैसेंजर या जितने भी लोग वहां पे दिख रहे थे मेरे को, सबके सब ऐसे ओल्ड फैशन वाली चीजें पहन के बैठे हुए थे. तो ऐसा मुझे अजीब सा लगा कि सबके सब ओल्ड फैशन की चीजें क्यों पहन के बैठे हैं. 1890s के आसपास की पैजे पहने हुए हैं. उस वक्त 1925 चल रहा है, और फैशन ऐसा दिख रहा था लोगों का जैसे 1890 का टाइम हो. तो उसको सब अजीब लगा. Then he saw, just a minute. I never saw many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. कह रहा है मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने सारे लोगों को बियर्ड में, साइड बर्न्स यानी इतनी बड़ी बड़ी कल में, और फैंसी मुस्टैच रखे हुए नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम पे फैशन दूसरा था. उससे 40 साल पहले 1890s में हो तो हुआ करता था. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high button shoes. हाई बटन शूज मतलब शूज थे बड़ी लेंथ वाले, और वो भी बटन वाले, बड़ी लेंथ वाले शूज, उसमें बटन लगे हुए, ऐसे पुराने जमाने में चलते थे. उसके ऊपर स्कर्ट पहना हुआ और ऐसी टी शर्ट पहनी हुई है जो पुराने जमाने की है. तो एक लेडी आई वहां पे. लेडीज तो फैशन कॉन्शियस होती है, जेंट्स का तो चलो फैशन चलो पुराना भी पहन सकते हैं, कुछ भी होता है, लेकिन लेडीज तो फैशन कॉन्शियस होती हैं. तो वो पुराने जमाने का 40 साल पुराना फैशन पहन के आ रही है. उसको अजीब सा लगा. Then, back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, very small Career and Ives locomotive. ये Career and Ives जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये नाम है. Career and Ives locomotive. Locomotive means पुराने जो टाइप के इंजन नहीं आते थे, जो कोयले से, वो कोयला जला के वो स्टीम इंजन टाइप होते थे, वैसा. तो लोकोमोटिव इंजन का उसको दिखाई दिया. उस लड़की के पीछे की तरफ उसने ध्यान दिया, कोई ट्रेन का जो इंजन था पुराना बना हुआ था, और भी करियर एंड आइव्स का बना हुआ है. करियर एंड आइव्स ऐसी कंपनी है जो बहुत पहले लोकोमोटिव इंजन बनाती थी. आजकल नहीं बनते हैं वहां पे, आजकल वहां पे इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, विद अ फनल शेप्ड स्टैक. और उसके अंदर में वो चिमनी जो होती है गैस निकालने के लिए फनल शेप की हुई, वो भी थी. एंड देन आई न्यू, और तब मुझे पता पड़ा कि यार मैं सच में किसी अलग जगह पे आ गया हूँ और पुराने जमाने में आ गया हूँ. मुझे अजीब सा तो लगा था. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. It was The World, and The World hasn't been published for years. मैंने अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, कौन से जमाने में पहुंच गया हूँ, मैं फटाफट एक न्यूज़पेपर वाला नीचे खड़ा था वहां पे ही, उसके पास गया, और वहां पे जाके मैंने न्यूज़पेपर पे उठा के देखने की कोशिश की. तो वहां पे एक न्यूज़पेपर पड़ा था, वो उसी दिन का न्यूज़पेपर था, और वो था द वर्ल्ड. द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर एक पब्लिकेशन पहले छापती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद में वो खत्म हो चुकी है कंपनी, और छपना बंद हो चुका है. ये कहाँ से आ गया, पुराना न्यूज़पेपर आज क्यों बेच रहा है? तो ये पुराने जमाने में ही था कंफर्म. The lead story was said something about President Cleveland. और उसके फर्स्ट पेज पे जो लीड स्टोरी यानी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बात कर रही है, जबकि अभी प्रेसिडेंट दूसरा है. और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड पुराने जमाने में हुआ करता था 40 साल पहले, उसकी स्टोरी चल रही है. So I have found that the front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1994. जब उसने ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर वहां पे देखा था, तब तो उसने ध्यान नहीं दिया था उसकी डेट क्या थी, लेकिन इसको इतना पता था कि द वर्ल्ड बहुत सालों से छपा नहीं है, और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड बहुत टाइम पहले होते थे, लेकिन उसने डेट ध्यान नहीं दी थी. लेकिन जब ये वापस आ गया था, लोगों को स्टोरी सुनाता था, कोई बिलीव नहीं करता था,
तो इसने अपना सबूत इकट्ठा करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी में गया था एक बार ये। उस पब्लिक लाइब्रेरी में जाके उसने पुराना न्यूज़पेपर निकलवाया द वर्ल्ड का, और उसने वो सारा स्टोरी, फ्रंट स्टोरी वो देखने की कोशिश कर रहा था कहाँ पे दिख रही है। वो फ्रंट स्टोरी उसको दिखी थी, और वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो था जून 11 1894 का था। अभी जबकि 1924 चल रहा है, यानी 30-40 साल पहले की बात उसको मिली, जब वो 30 साल पहले की पहुंच गया था। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. अब मैंने अपने दादाजी से, अपने पापा से इन सब से बातें सुनी थी, और मैंने जाना भी था जब मैं छोटा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल से, आपको कहीं भी जाने के लिए थर्ड लेवल से, सेकंड लेवल से और फर्स्ट लेवल से, उस टाइम पे थर्ड लेवल हुआ करता था। अब मैं थर्ड लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मुझे यकीन आ गया था क्योंकि मैंने वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखा था। तो मैं सीधा क्लर्क के पास चला गया, टिकट विंडो पे चला गया। मुझे लगा कि यहाँ से मुझे टिकट मिल जाएगी, सीधी बात है, मेरे को कहीं भी जाना हो तो। और मैं कहाँ जाना चाहता था? अपनी वाइफ के पास। लेकिन वहां जाके मैंने क्या सोचा कि मेरे को कहाँ जाना है, लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपनी वाइफ के साथ वहां जाऊं, टिकट विंडो से गेल्सबर्ग इलिनॉय की टिकट लूं और जाऊं। इलिनॉय इज लाइक एक स्टेट है वहां पे, गेल्सबर्ग इज द सिटी नेम। तो वो इन द ईयर 1894, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉय। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं 1894 में पहुंच चुका हूं, तो मेरे पास मौका था, और मैं क्या चाहता था, लुइसा को लेके मैं 1894 के गेल्सबर्ग सिटी में पहुंच जाऊं। गेल्सबर्ग सिटी नहीं, एक्चुअली विलेज टाइप था, टाउन था। Have you ever been there? It's a wonderful town, still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. तो कह रहा है कि गेल्सबर्ग इलिनॉय, जो टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां मैं जाना चाहता था उस टाइम पे जब थर्ड लेवल पे मैं था, वो इतना मस्त टाउन है। अगर आपको पता हो, तो आप नहीं गए हो तो मैं बता देता हूँ, वो अपनी तरफ से बता रहा है कि वहां पे आज भी बड़े बड़े लकड़ी के फ्रेम हाउसेस हैं, और जो ऊपर तक होते हैं, मतलब फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल भी होता है उनमें, और उनके अंदर में कई सारे ट्रीज इतने बड़े बड़े हैं, जो ट्रीज उनकी छतों को छूते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज भी हैं। यानी गांव जैसा मस्त माहौल नेचुरल वाला होता है, जहाँ पे ड्यूप्लेक्स टाइप बने होते हैं और बड़े बड़े आसपास पेड़ होते हैं। शहरों में ऐसा नहीं दिखाई देता है, शहरों में तो फ्लैट बने रहते हैं और पेड़ वगैरह तो देखने को मिलते ही नहीं है, राइट। तो ये बता रहा है कि वो गांव का मस्त माहौल वाले घर वगैरह होते हैं, वहां पे ऐसा होता है, सब अच्छा होता है। Summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, and men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. अब वो बता रहा है, सीन बता रहा है, जो सीन इसके दिमाग में था कि गेल्सबर्ग इलिनॉय में आज भी इतने बड़े गांव के जैसे माहौल है, वहाँ पे घर होते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। 1894 की बात कर रहा है ये, जबकि एक्चुअली 1925 की बात कर है, 25 में। खैर है, उस टाइम पे पीसफुल लिविंग स्टेटस होता था लोगों का। जो मैन होते थे वो अपने ही घर के लॉन में बाहर बैठे हुए सिगार पीते हुए और बातें करते रहते थे। जो वुमेन होती थी वो घर के अंदर की तरफ या दहलाने पे बैठी हुई होती थी, और वहां पे पाम लीफ के बड़े बड़े फैन होते थे उनके हाथ में, उनसे फैन करती थी। और आसपास फायर फ्लाई यानी जुगनू भी घूमते रहते थे। बहुत नेचुरल और पीसफुल एनवायरनमेंट होता था। To be back there with the First World War still 20 years off, and World War II over 40 years in the future. I wanted two tickets for that. कह रहा है जब मुझे मौका मिला, मैं ऐसे टाइम पे 1894 में पहुंच चुका हूं, और मैं वहां पे हूँ, थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हूँ, जहां से मुझे गेल्सबर्ग इलिनॉय का टिकट मिल सकता है। तो मैंने तो मौका जाने ही नहीं दिया। मैं फटाफट सीधा क्लर्क के पास पहुंचा, और मैं वो चाहता था, उस गेल्सबर्ग इलिनॉय वाले माहौल, शांत वाले माहौल में जाना चाहता था। मैं शहर की लाइफ मुझे पसंद नहीं थी। अब मुझे मौका मिला था वहां पे उस टाइम में उस गांव की लाइफ को जीने का, तो मैं तो फटाफट जाके क्लर्क से वहां से दो टिकट ले मांगने की कोशिश की, क्योंकि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 20 साल बचे हैं, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो शायद 40 साल से भी ज्यादा बचे हैं। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग इलिनॉय। समझ में आएगा इसको?
गलती से चला गया था, ये कह रहा है, ये अपने आप को एक्सप्लेन क्या कर रहा है कि मैं गलती से उस रास्ते पे चला गया था जहाँ पे थर्ड लेवल था, और वहां पे मेरे को सब कुछ दिखाई दिया अजीब सा पुराने जमाने का। जब मैंने वहां पे न्यूज़पेपर देखा तो वो भी पुराने जमाने का था, तो मुझे कंफर्म हो गया कि मैं 1890s में आ चुका हूँ और मैं गेल्सबर्ग इलिनॉय की टिकट ले सकता हूँ। मैं अपनी वाइफ के साथ जाके उस गांव में बस सकता हूँ, और अभी 20-30 साल पड़े हैं वर्ल्ड वॉर होने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जाके गांव में मस्त लाइफ जीऊंगा, ऐसा सोचा उसने। तो वहां जाके टिकट लेने की कोशिश करता है। The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for two coach tickets one way. तो क्लर्क ने मेरे को फेयर बताया, हिसाब लगा के बताया कि कितना होगा गेल्सबर्ग इलिनॉय जाने का। फिर उसने ध्यान से मेरे को देखा तो उसने मेरे हेड बैंड को देखा। उसके लिए मेरा वाला हेड जो था नया फैशन था, अजीब सा फैशन था, मेरे लिए उसका था, उसके लिए मेरा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, फिर भी उसने फेयर काउंट करके मुझे बताया। एंड मेरे को जब बताया तो मुझे, मेरे पास पैसे थे उतने, वन वे के टिकट ले सकता था मैं, दो टिकट। तो बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। मैंने अपने जेब से पैसे निकाले, डॉलर्स निकाले इसने, और फटाफट काउंट करके देने की कोशिश करने लगा। जब मैं काउंट कर रहा था डॉलर्स, तो वो क्लर्क जो है मेरे को घूर के देख रहा था। मैंने क्लर्क की तरफ देखा तो वो मेरे को घूर के देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसने इशारा किया मेरे बिल्स, मतलब मनी, करेंसी, जो पेपर होता है, डॉलर पेपर, उसको बिल बोलते हैं वो। तो बिल मतलब मनी। तो वो ही नोटेड एट द बिल्स, उसने मनी की तरफ इशारा किया और बोला, दैट एंट मनी मिस्टर, कि ये कौन से पैसे लेकर आए हो, ये कोई पैसे वैसे नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ था, 1924 के आसपास की ये चार्ली की बात है, और 1894 में वर्ल्ड वॉर वन से पहले दूसरी करेंसी चलती थी। हालांकि करेंसी डॉलर ही थी, लेकिन नोटबंदी हुई थी वर्ल्ड वॉर के बाद में, और नए नोट छपे थे। तो नए नोट थे इसके पास, चार्ली के पास, और ये पुराने जमाने में पहुंच गया, तो पुराने जमाने में नए नोट दिखा रहा है, तो वो थोड़ी मानेगा। दैट एंट मनी मिस्टर, ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू चीट मी, ठीक है ना, कि तू मेरे को ये नकली नोट दिखा रहा है, ये नकली नोट है, ये असली नोट नहीं है, जबकि थे असली नोट, नए जमाने के थे, पुराने जमाने में नकली लगेंगे, राइट। तो कह रहा है अगर तू मेरे को चीट करना चाहता है, नकली नोट पकड़ आ रहा है, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, कि तू भाग नहीं पाएगा यहाँ से, मैं पुलिस वाले को बुला लूंगा। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम, फिर उसने इशारा करके दिखाया अपने ड्रॉवर की तरफ कि देखो ये नोट होते हैं। Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. कह रहा है आजकल जो हमारे नोट होते हैं, आजकल जो हमारे बिल्स होते हैं डॉलर के, वो डिफरेंट हैं, और ऑब्वियसली जो उसने मेरे को दिखाया उस टाइम पे वो डिफरेंट थे, और वो बिग साइज थे, मेरे वाले छोटी साइज के थे, और डिफरेंट कलर भी थे, दिखते भी डिफरेंट थे, तो वो कैसे मानेगा। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, जब मेरे को ऐसा पता पड़ा कि मेरे पास जो मनी है उस जमाने की नहीं है, और मैं उस जमाने में पहुंच गया हूँ, मैं इनको ये मनी दिखाऊंगा तो हो सकता है मेरे ऊपर नकली पैसे का फ्रॉड मेरे ऊपर साबित हो जाए, और ये मेरे को पुलिस के हवाले करा दे, तो मैं फटाफट भागा वहां से। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। अभी ये जैसे ही इसको मौका मिला था 1894 में, पता पड़ा था कि 1894 में है, ये जाके गेल्सबर्ग में रहना चाहता था, वो जिंदगी जीना चाहता था, इसको बहुत अच्छा लगता था वो चीज। इसने दादाजी की कहानियों में, पापा की कहानियों में सुना होगा कि वो टाउन बहुत अच्छा है, ऐसा वगैरह, इसके दिमाग में ऐसा था कि वो लाइफ बहुत पीसफुल लाइफ हुआ करती थी, बहुत अच्छी हुई थी, आजकल की लाइफ से वरी जो होती है उन सबसे दूर होती थी, तो इसके दिमाग में वो थी, तो वो अच्छी लगती थी। लेकिन जेल, अगर ये फ्रॉड मनी के केस में पकड़ा जाता तो ये जेल जाता। तो ये कह रहा है देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, भले मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा पीसफुल था, लेकिन जेल कभी भी पीसफुल नहीं होता है, तो मुझे वहां नहीं जाना था, इसलिए मैं फटाफट भाग लिया। और मैं जैसे भागा, जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस भाग लिया। एंड दैट वाज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज। बोले जहां तक मुझे याद है मैं तो वापस वही रास्ता पकड़ के आ गया जिस रास्ते से मैं वहां पहुंचा था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, यानी कि मैं फटाफट आया, मैं भागता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ा, मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच गया, सॉरी सेकंड लेवल पे पहुंच गया, थर्ड लेवल से सेकंड लेवल पे, यानी कि फर्स्ट बेसमेंट में पहुंच गया। और वहां पे मैंने फटाफट सही जगह की टिकट, यानी कि आज के जमाने की जो मेट्रो ट्रेन थी वहां की टिकट लेके, और फटाफट ट्रेन पकड़ी और फटाफट अपने घर पहुंच गया। उस रात तो पहुंच गया, लेकिन नेक्स्ट डे उसके दिमाग में चल रही है ये बात कि मैं कहाँ चला गया था, कैसे चला गया था, कौन सा रास्ता था और क्या था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। अब इसने क्या करा
कि भाई असल में प्रॉब्लम कहाँ हुई थी इसको, कि इसको जगह का रास्ता तो मिल गया था वहां से आने का, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई थी, डॉलर्स की। डॉलर्स इसके पास जो थे वो नए वाले थे, इसको पुराने डॉलर्स चाहिए थे जो उस टाइम पे चलते थे, तो इसका काम बन जाता। तो इसने क्या करा, नेक्स्ट डे लंच टाइम के बीच उसने ऑफिस से निकल के गया बैंक, बैंक में जितनी भी मनी थी उस टाइम पे उसके पास में $300 बैंक में मनी थी, और वो काफी अच्छी अमाउंट होती है उस टाइम की। तो $300 थे वो सारे उसने विड्रॉ कर लिए और गया पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस गया और वहां से जाके उसने ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी। 30 साल पहले जो नोट चलते थे वो नोट खरीदे, नए नोट देके पुराने नोट खरीद रहा है। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। और ये चीज जब मैंने साइकेट्रिस्ट को बताई थी कि मैंने एक्चुअली में ऐसा किया था, तो वो चिंता में पड़ गया था, बोले ये तो पागल हो गया है शायद, सच में इनसे तुझे के ऊपर बिलीव करता है। तो वो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड मेरा यकीन नहीं कर रहा था इस बात पे, मैंने उसको बताया ये चीज भी। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. कई जगहों पे होता है ना, जैसे आपने लाल दरवाजा वगैरह पे भी देखा होगा, पुराने जमाने के चिल्लर वगैरह नोट वगैरह होते हैं, या पुराने जमाने के, वो सब आप खरीद सकते हो आपको चाहिए तो। आप नए जमाने के नोट देकर आओ, पुराने जमाने के आप खरीद सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है और मिलते कम है, तो प्रीमियम पे करना पड़ता है एक तरीके से कमीशन बेस पे। या जैसे आपको छुट्टे चाहिए हों, 2000 के छुट्टे आप वहां जाके कराओगे, पुराने सिक्कों के लेकर आओगे, पुराने छोटे नोट लेकर के आओगे, तो आपको 2000 नहीं मिलेंगे, 1800 या 1700 कुछ मिलते हैं, 200 300 का काट लेते हैं कमीशन अपना। तो वैसे ही होता है। माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. बोले मेरे आज के जमाने के $300 मैंने वहां दिए, लेकिन मेरे को उस जमाने के सिर्फ $200 भी नहीं मिले, $200 से भी कम मिला। जस्ट इमेजिन, 40 साल 30 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे महंगाई भी इतनी नहीं होगी और उस करेंसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी। जैसे करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन कम हो या बढ़ती है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कम होती जाती है। तो 40 साल पहले तो वो करेंसी $200 भी बहुत ज्यादा हो गए, $300 से तो ज्यादा वैल्यू हो गई उनकी, राइट। सो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरी बात, बट आई डिड नॉट केयर, और मेरे को परवाह भी नहीं थी उसकी बात। क्यों? क्योंकि एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। ये 1894 में मैंने सुन रखा था मेरे दादाजी से कि उस टाइम पे जो एग्स होते थे, अंडे होते थे, वो 13 सेंट्स यानी 13 पैसे, अमेरिका में सेंट्स मीन्स इंडिया के पैसे, तो 13 सेंट्स के अंदर में आपको एक डजन एग्स मिल सकते हैं। इतना सस्ता टाइम था उस टाइम पे, महंगाई नहीं थी। सो मुझे कोई परवाह नहीं थी, $200 तो मेरे पास बहुत हो गए, 4 6 महीने का ऐसे ही निकल जाएगा। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। कह रहा है नेक्स्ट डे लंच आवर में मैं बैंक गया, मैंने पैसे चेंज करा के मैंने खरीद लिए, $200 मिले, लेकिन मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मुझे सस्ता पता था, मैं सस्ते में जाऊंगा। तो मैं फटाफट गया, दूसरे दिन शाम को भी मैं जब वापस आ रहा था घर पे, तो मैं जानबूझ के उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया और नीचे थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सेकंड लेवल से नीचे थर्ड लेवल मेरे को मिल ही नहीं रहा था, रास्ता ही नहीं मिला मेरे को। उस दिन नहीं मिला, मैंने दूसरे दिन जाके ट्राई किया, फिर नहीं मिला, 4 5 दिन बाद फिर से ट्राई किया, फिर नहीं मिला। मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने को कभी मिला ही नहीं, थर्ड लेवल का रास्ता दोबारा कभी मिला ही नहीं। एक बार गलती से चला गया था, बाद में इसने दोस्तों से बात करी, अपनी वाइफ से बात करी, उन सब ने किसी ने यकीन ही नहीं माना। सब लोग इसके बारे में परेशान हो रहे थे, सब सोच रहे थे ये पागल हो गया है या इसको आ, आ, परेशानी हो गई है, कुछ एस्केप करना चाहता है। साइकेट्रिस्ट ने जो बात बोली थी सब इस बात पे यकीन करते थे। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज नाउ, कि इसने थर्ड लेवल पे बाय एक्सीडेंट ये चला गया था एक दिन, उसके बाद इसको जो जो चीजें दिखाई दी उसने सारी चीजें हमको बताई, ये सारी चीजें उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताई थी। अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताते हैं क्या होता है अभी। सो 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, इतना सस्ता था इसलिए इसको परवाह नहीं थी, $200 भी काफी थे। नाउ द स्टोरी गोज अहेड, ऑल ऑफ यू आर विद मी राइट? ओके, but I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. इसने बहुत बार ट्राई किया, एक दिन 2 दिन 10 दिन बाद भी 15 दिन बाद भी, लेकिन कभी नहीं मिला इसको। लुइजा was pretty worried when I told her at all this. जब उसको बताया सब उसको, लुइजा को, तो लुइसा चिंता में आ गई, बोले ये क्या हो रहा है इसको, एंड didn't want me to look for the third level anymore. उसने कहा आज से तू उस स्टेशन पे जाना ही मत और कभी कोशिश भी मत करना थर्ड लेवल ढूंढने की। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ दिनों के बाद में मैंने भी ट्राई कर करके थक गया था, मैंने अब रोक दिया, अब मैं नहीं ढूंढने जाता हूँ। सो अब सिचुएशन ऐसी थी कि इसने मान लिया था कि शायद इसका वहम था या जो भी था, इसने ढूंढना बंद कर दिया। अब इसकी लाइफ वापस रूटीन लाइफ में आ गई, एवरीडे गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक टू होम, उसी रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा के वरीज टेंशन वगैरह में लाइफ चल रही थी अभी भी। एवरी वीक
आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर एक दिन वीकेंड पे इसको शायद टाइम मिला होगा, स्टैम्प कलेक्शन में वापस गया, इसको स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। कह रहा है मैंने कुछ टाइम पहले बंद कर दिया था जाना ढूंढना उस थर्ड लेवल को, लेकिन एक दिन में जब मैं स्टैम्प कलेक्शन में गया, उसके बाद हमें कुछ ऐसा हुआ कि अब दोनों के दोनों, मैं और मेरी वाइफ, वी आर बोथ लुकिंग, हम दोनों हर वीकेंड पे जाते हैं उसी स्टेशन पे और थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं, because now we have proof that the third level is still there. अब इनके पास कोई प्रूफ था कि थर्ड लेवल सच में है, is still there. अब वो प्रूफ क्या था? My friend Sam Wiener disappeared. इसका एक फ्रेंड था सैम वीनर नाम का, जो गुम हो गया था, गायब हो गया था। गायब मतलब कैसे हुआ था? लेट्स गेट टू नो। Nobody knew where. कहाँ गया था किसी को पता नहीं, but I sort of suspected because Sam is a city boy. बट मुझे पहले से ही शक था कि वो कहाँ गया होगा। क्यों? क्योंकि सैम जो है सिटी बॉय है। सिटी बॉय मतलब एक शहर में पैदा हुआ है, शहर की लाइफ जी है उसने। शहर की लाइफ में वरीज होती हैं, आप देखते हो, सभी चीजें दूर होती हैं, ऑफिस स्कूल वगैरह दूर होते हैं, तो आने जाने का टेंशन होता है, महंगाई होती है, घरों की और चीजों की कीमतें इतनी ज्यादा होती है कि रोजमर्रा हम जिंदगी में जीने में भी बहुत सारी टेंशन होती हैं। सो वो सिटी बॉय था, एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग वो गांव का नाम है इलिनॉय में, जहाँ पे बहुत सस्ता था सब कुछ और बहुत पीसफुल था और लोग नेचर के साथ में रहते थे, कोई वॉर की टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो गेल्सबर्ग के बारे में इसने अपने दोस्त सैम को बहुत बार बताया था। तो इसको लगता था कि सैम की भी अंदर की इच्छा होगी कि ये सब सिटी की लाइफ छोड़ के उसको मौका मिले वो ऐसी गाँव की लाइफ जीने में, और वो भी पुराने जमाने की, तो वो चला जाएगा वहां पे। आई वेंट टू स्कूल देयर, ये कह रहा है जब मैंने उसको कहानियां बताई थी गेल्स बग की, मैं वहां पे स्कूल में जाता था, मैंने ये भी बताया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। तो उसने मेरे को बताया भी था रिएक्शन में, जब भी मैं उसके बारे में, गेल्स बग के बारे में बात करता था, तो उसको वो चीज सुनने अच्छा लगता था, यानी कि गेल्स बग की स्टोरी उसको अच्छी लगती थी और वैसा माहौल उसको पसंद था। एंड दैट्स वेयर ही इज, ऑलराइट, इन 1894। वो कह रहा है अब मुझे पक्का पता पड़ गया है कि वो वहीं पहुंच गया है, गिल्सबर्ग में ही पहुंच गया है और सही सलामत है, ऑल राइट है, और 1894 में पहुंच गया है, आज के जमाने में नहीं, 1894 में पहुंच गया है। तो कैसे पहुंचा होगा? ऑब्वियसली इसके हिसाब से वो थर्ड लेवल ढूंढ के वहां से पहुंच गया है। लेट्स सी कैसे बताता है, इसको क्या प्रूफ है इसके पास। बिकॉज वन नाइट फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग मतलब छोटी छोटी चीजें देखना ध्यान से, बारीकी से, फसिंग उसको बोलते हैं। तो इसने एक बार स्टैम्प कलेक्शन निकाला था अपना, देखने गया था, और सारी चीजें जितनी भी थी उसमें स्टैम्प, एक एक चीज को ध्यान से देख रहा था, जस्ट टाइम पास के हिसाब से, हॉबी थी इसकी तो इसलिए वो कर रहा था। तो आई फाउंड, वेल, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज? उसने एक फर्स्ट डे कवर उसमें देखा, और फर्स्ट डे कवर मैंने आपको बताया था क्या होता है। एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जो स्टैम्प कलेक्शन जिनको शौक होता है, वो लोग जिस दिन जो स्टैम्प इशू होती है, उसी दिन जाके पोस्ट ऑफिस से 4 एनवेलप और उसमें 4 लेटर, ब्लैंक लेटर डाल देते हैं, और उनपे स्टैंप लगा देते हैं 4 नई जो स्टैंप इशू होती है, बाद में वो खुद को ही पोस्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है, वो पोस्ट ऑफिस का सील उस पर लग जाता है, तो सील में डेट आ जाती है, उससे प्रूव होता है कि ये फर्स्ट डे का इशू किया हुआ स्टैंप है। स्टैंप कलेक्टर्स ऐसे बहुत फिनिकी होते हैं इस बारे में कलेक्शन के लिए, तो फर्स्ट डे कवर रखते हैं। तो इसने एक फर्स्ट डे कवर इसको उस दिन मिला, उस कलेक्शन में ढूंढते हुए इसको ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to them on the very first day of sale. अभी बता रहा है फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जब भी एक स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स उसको खरीदते हैं एंड उनको यूज करते हैं, अपने आप को ही एनवेलप जो है पोस्ट करते हैं उस स्टैम्प को यूज करके, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेल। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, जब पोस्ट मार्क लगता है उसके ऊपर तो उससे डेट प्रूव हो जाती है। The envelope is called a first day cover. इस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। They are never opened, और ऐसे एनवेलप कभी कोई खोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, खुद ही पोस्ट किया होता है, ब्लैंक पेपर है उसके अंदर में, खोल के फायदा क्या है? सिर्फ उसको अपने कलेक्शन के रूप में सजा के रख देते हैं वो। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन दी एनवेलप, तो ब्लैंक पेपर होता है इसलिए खोलते नहीं है। That night among my oldest first day covers, तो जिस दिन ये स्टैम्प कलेक्शन अपना खोलने गया था, उस रात को इसको सारे के सारे पुराने जितने भी कलेक्शन थे फर्स्ट डे कवर्स के, सारे निकाल के देख रहा था। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उसको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला जो उसको कभी ध्यान ही नहीं था कि उसके यहाँ पे होना चाहिए था। उसको लगा ये मैंने पहली बार देखा है, जबकि स्टैम्प कलेक्शन ये ऑलमोस्ट हर महीने में एक बार दो बार दो देखता ही होगा अपना खुद का। फिर भी इसको ऐसा लगा कि एक इसका फर्स्ट डे कवर पड़ा हुआ है जो कभी इसने देखा नहीं है, बट वो वहां पे था।
बट देयर इट वॉज, वो था वहां पे. इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. और उसमें एड्रेस क्या लिखा हुआ था? उसके ग्रैंडफादर का गेल्सबर्ग इलिनॉय का एड्रेस लिखा हुआ था. यानी कि हो सकता है इसके ग्रैंडफादर ने फर्स्ट डे कवर लेके अपने आप को मेल किया हो. बट अगर ऐसा होता तो इसको स्टैम्प कलेक्शन में इतनी बार जब भी इसने स्टैम्प कलेक्शन ढूंढा है अपना, उसमें मिलना चाहिए था, लेकिन पहले कभी नहीं मिला था. आज ही मिला उसको. उसमें एड्रेस गेल्सबर्ग का लिखा हुआ था. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. तो गेल्सबर्ग इलिनॉय का ग्रैंडफादर के नाम से ये लिखा हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. जुलाई 1894 से लेके वो पहले से ही वहां पे पड़ा हुआ था, ऐसा लिखा रहा था, क्योंकि पोस्ट मार्क उसमें जुलाई 18 का था. द पोस्ट मार्क शोड दैट डेट. येट आई डेंट रिमेम्बर इट एट ऑल. बट मुझे कभी भी याद नहीं आया कि मैंने ऐसा फर्स्ट डे कवर उसमें कभी देखा है. द स्टैम्प वॉज अ 6 cent डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड. रिमेंबर, जब ये थर्ड लेवल पे गया था तब इसने एक न्यूज़पेपर देखा था. न्यूज़पेपर में जो हाईलाइट की हुई खबर थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी. और क्लीवलैंड 1894 से भी पहले का था. और ये प्रेसिडेंट गारफील्ड की स्टैंप इशू की हुई थी 1894 में. प्रेसिडेंट गारफील्ड क्लीवलैंड से भी पहले का प्रेसिडेंट है, उसके नाम की स्टैंप इशू हुई है 1894 में. सो पुराने जमाने की स्टैंप इशू की हुई, वो भी 1894 की. उसका फर्स्ट डे कवर पड़ा हुआ है, लेकिन इसने कभी वो देखा नहीं है. और उसने चेक किया, स्टैम्प बिल्कुल प्रॉपर थी, फर्स्ट डे की थी, उसका मार्क दिखा रहा था, 6 सेंट की खरीदी हुई थी, इसको पता था वो डल ब्राउन कलर की थी, पिक्चर गारफील्ड की थी, इसने सब पहचाना. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there. कह रहा है हो सकता है दादाजी के पास ये जब मेल आया हो और उन्होंने देखा हो फर्स्ट डे कवर है, तो उन्होंने बिना खोले ही इस टाइम कलेक्शन में रख दिया हो. उन्होंने कभी नहीं देखा हो. उन्होंने नहीं देखा हो दोबारा उठा के, लेकिन मैंने भी कभी नहीं देखा, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया आज तक. ऐसा कैसे हो सकता है? टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट. जब तक मैंने उसको निकाल के खोला नहीं, तब तक मुझे चैन नहीं मिला. द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, इट रेड. तो इसके अंदर में जो पेपर पड़ा हुआ था, लेटर पड़ा हुआ था, वो ब्लैंक नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ है? ये पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा का पूरा लेटर दिया हुआ है. इसमें एड्रेस दिया हुआ है गेल्सबर्ग इलिनॉय का, डेट लगी हुई है लेटर की तरह जो फॉर्मेट होता है, आप देखो. एंड देन चार्ली का नाम लिखा हुआ है, और चार्ली ये है कैरेक्टर हमारा, ग्रैंडफादर नहीं. तो चार्ली को लेटर लिखा हुआ है ये 1894 में. आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट. कि मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं ये मान लूं कि तुम सच में सही बोल रहे हो. देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट. बाद में मुझे यकीन हो गया कि नहीं, तुम सच में सही थे. एंड चार्ली, इट इज ट्रू. और चार्ली, ये सही भी है, सच है जो तुमने कहा था. आई फाउंड द थर्ड लेवल. मुझे थर्ड लेवल मिल गया. मीन्स ये उसका कोई दोस्त है जिसको इसने स्टोरी बताई थी चार्ली को. चार्ली ने थर्ड लेवल की, और ये थर्ड लेवल की स्टोरी को इसको यकीन करता था, और इसने खुद ने जाके ढूंढा और उसको मिल गया थर्ड लेवल. I have been here 2 weeks, and right now down the street at the Delhi's someone is playing a piano. Delhi's क्या है? DALY. डी कैपिटल है तो समझो नाम है, किसी स्टोर का, कैफे वगैरह का नाम है, डेलीज कैफे वगैरह ऐसा कुछ होगा. तो उस कैफे में कोई पियानो बजा रहा है ऑनलाइन, जैसे लाइव ऑर्केस्ट्रा वगैरह था, तो लाइव पियानो कोई बजा रहा होगा वहां पे कैफे में. तो कह रहा है मेरे को थर्ड लेवल मिल गया, और आज नहीं, मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ. मेरे को 2 हफ्ते पहले मिला था, 2 हफ्ते से हूँ यहाँ पे, सब कुछ बढ़िया है. और डाउन द स्ट्रीट यहाँ पे मैंने डेलीज कैफे भी देखा है, जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ अभी, कोई पियानो बजा रहा है यहाँ पे, लाइव पियानो. एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम. सीइंग नेली होम वहाँ का नेशनल एंथम टाइप एक सॉन्ग है, सीइंग नेली होम. जो इसकी अमेरिका की इंडिपेंडेंस के हिसाब से गाया जाता है. जब इंडिपेंडेंस मिला था ना अमेरिका को, उसको हिसाब से गाया जाता है, सीइंग नेली होम. नेली इज लाइक जैसे हम इंडिया को भारत माता कहते हैं, वैसे ही नेली वो अमेरिका के लिए बोलते हैं. तो नेली होम, वो अपना घर में आ गई है, या वो फ्री हो गई है, इस तरीके से. दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सिंग नेली होम. तो कोई लाइव पियानो बजा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे लोग सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं. एंड आई एम इन्वाइटेड फॉर लेमनेड. और मैं जिस पड़ोस में रहता हूँ वहाँ पे पड़ोसी इतने मिलाप वाले हैं, इतने फ्रेंडली हैं कि उन्होंने मुझे लेमनेड पे आज शाम को बुलाया भी है. Yes, somebody raised hand. Any questions, Yatri? Any question is this? सो यह कह रहा है कि वहां पे बहुत सारे लोग फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ. तो इसीलिए अभी यहाँ पे बहुत सही है, जो तू बोलता था वो बिल्कुल सही बात है. आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमिनेट. कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा. कहते हैं तुम लोग भी यहाँ पे आ जाओ. चार्ली और लुइसा, ये उसकी वाइफ को भी जानता था कि चार्ली और लुइसा तुम दोनों भी आ जाओ. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल.
और मैं बताता हूँ, मैं हमेशा देखता रहता, तेरी स्टोरी सुनने के बाद में मैं ढूंढता रहता था उसको, मेरे को एक दिन मिल गया। अब तुम्हें भी वही कह रहा हूँ कि तुम भी ढूंढते रहो, तुम्हें भी मिल जाएगा, और मिल जाए तुम फटाफट ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सही में मजा आएगा। इट इज वर्थ इट। ये एफर्ट तुम्हारा वर्थ है, तो तुम उसको करो और यहाँ पे आ जाओ। लाइफ बहुत अच्छी है यहाँ पे, बिलीव मी। और ये सैम नीचे से साइन लिखा हुआ था, द नोट इज साइंड सैम। सैम वीनर जो डिसअपियर हो गया था, वो 1894 में पहुंच गया है, वहां से लेटर लिख रहा है। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. तो जब ये स्टैम्प स्टोर पे और कॉइन स्टोर पे गया, यहाँ पे पुराना बारे में, सैम के बारे में पता करने गया, तब इसको पता पड़ा कि सैम आया था वहां पे और उसने पुराने जमाने के $800 वर्थ की करेंसी खरीदी थी पुरानी। यानी कि उसको सच में थर्ड लेवल में उसमें बिलीव था, और उसने ढूंढा और उसने वो पुरानी करेंसी लेके और चला गया पुराने जमाने में। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. hay फीड एंड ग्रेन, हे मतलब चारा, फीड मतलब जो जानवरों को खिलाते हैं, और ग्रेन मतलब अनाज। तो एक किसान का जो अनाज वगैरह या चारे वगैरह का जो बिजनेस होता है, वैसा बिजनेस खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। $800 बहुत अच्छा है। उसमें वो अपना एक छोटा सा घर बना के बैठ गया होगा, छोटा सा बिजनेस खोल के बैठ गया होगा, अब लाइफ बहुत बढ़िया सेट हो गई होगी उसके लिए। He always said that's what he really wished he could do. तो जो सैम इसका दोस्त था, ये हमेशा इसको बोलता था कि वही बिजनेस ये हमेशा से करना चाहता था। एंड ही certainly can't go back in his old business. और जो इस जमाने में इसका जो बिजनेस होता था, वो ओल्ड बिजनेस कह रहा है, जबकि वो नया बिजनेस है। लेकिन वो नया बिजनेस यानी कि ओल्ड बिजनेस वो कर नहीं सकता था। क्यों? नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉय इन 1894। वो वाला बिजनेस जो इसका यही यहाँ पे करता था, वो गेल्सबर्ग इलिनॉय में पॉसिबल ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, उस टाइम पे लोगों के लाइफ बहुत पीसफुल थी, ज्यादा स्ट्रेस भरा नहीं था, तो लोग परेशान नहीं होते थे। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका उस बिजनेस क्या था? वाई सैम वाज माय साइकेट्रिस्ट। तो ये सैम कौन था? जो इसका साइकेट्रिस्ट दो था, जो इसका इलाज कर रहा था, जो इसको बोल रहा था कि तू एस्केप करना चाहता है, तेरा वहम है, तेरा ये है वो है। असल में सैम खुद भी एस्केप करना चाहता था। जब इसकी कहानी को इसने सुना था, तो उसको काफी कुछ यकीन हो गया था, और इसको लगता था कि अगर मुझे थर्ड लेवल मिल जाए तो मैं तो बहुत खुशी होगी, मैं चले जाऊंगा उस लाइफ में, जीऊंगा वहां भी। तो ये सच में थर्ड लेवल इसने ढूंढा, और वो सच में वहां चला गया, 1894 में पहुंच गया। और वहां पे लाइफ बहुत पीसफुल है, बहुत शांति भरी है। उसको $800 से उसने नया बिजनेस भी चालू कर दिया। 2 वीक निकल गए, बाद में इसको लेटर लिख के भेजता है कि भाई तू भी आ जा, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ है। वहां पे ओल्ड इसका बिजनेस चालू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि साइकेट्रिस्ट था ये। साइकेट्रिस्ट लोगों की मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मेंटल प्रॉब्लम्स उस वक्त थी ही नहीं लोगों को, तो साइकेट्रिस्ट का धंधा नहीं चल सकता, इसलिए इसने ये अपना एक पसंदीदा बिजनेस चालू कर दिया था। दिस इज वॉट द स्टोरी इज गाइस। चैप्टर खत्म हुआ है। यहाँ पे चैप्टर कैसे खत्म किया है उसने, ऑथर ने, मैं बताना चाहता हूँ कि ऑथर ये कह रहा है कि एक्चुअली में थर्ड लेवल है, मेरी बात कोई नहीं मानता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट ने मानी, उसने ढूंढा और उसको मिल गया, और वो पहुंच भी गया वहां पे, और मेरे पास प्रूफ भी है, देखो उसने मेरे को लेटर लिखा है वहां से। और अब आज कंडीशन ये है कि मेरी वाइफ भी इसमें बिलीव करती है, मैं भी बिलीव करता हूँ, और हर वीकेंड पे हम जाके वो थर्ड लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमें नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको लेटर लिख के भेज रहा हूँ। और ये सिचुएशन है, मैं चले जाऊंगा किसी दिन, गुम हो जाऊंगा, पता भी नहीं पड़ूंगा, ऐसे है। So this is what the situation is. The chapter is over here. The third level, whether it existed or not, author has not clearly said it, but in his belief, yes, it did exist. बट साइकेट्रिस्ट का एक प्रूफ भी उसने दिखाया है, और वो प्रूफ सच में सील भी लगा हुआ है, फर्स्ट डे कवर था, बंद था, पोस्ट मार्क का था, 1894 का उसमें सील लगा हुआ था। सो देर आर सम प्रूफ्स विच आर इंडिकेटिंग ये बात सही है, बट देर आर मैनी अदर थिंग्स विच वी डोंट बिलीव, बिकॉज थर्ड लेवल वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उस बिल्डिंग में है ही नहीं। ओके गाइस, समझ में आया चैप्टर?